السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل MMTV۔ ناظرین، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، تقریباً 3 دن پہلے گلشن عباس گوٹ پلیاری پر MDA والوں نے ایسا اٹیک کیا کہ غریبوں کو دن میں بے گھر کر دیا۔ نہ کوئی نوٹس جاری کیا گیا تھا، نہ کوئی بورڈ ایشو ہوئے اور نہ کوئی ایسا پیغام دیا گیا تھا۔ اچانک دن میں آئے، پہلے ان کو دلاسا دیا کہ ہم آپ کے گھر مسمار نہیں کریں گے، اور ایسا ہوا کہ اچانک گھروں کو مسمار کر غریبوں کو بے گھر کر کے چلے گئے۔ اب گلشن عباس کے بعد بات اٹھ گئی ہے کوہرام گوٹ کی عوام کو بھی آخر یہی ڈر دکھایا جا رہا ہے کہ گاڑی آنے والی ہے، تو کوہرام گوٹ کی عوام بھی باہر نکلی ہوئی ہے۔ آخر میرا گورنمنٹ سے کچھ سوالات ہے کہ آخر آپ غریب کو ہی ہر بار نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ چلے آئیں، میں آپ کو اپنے ہی سرکاری اداروں کے کچھ ایسے پلاٹس کے بارے میں بتاتا ہوں جو غیر قانونی جگہ پر قائم ہے۔ حال ہی میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے جو گھر ہے بنی گالہ والا، وہ بھی غیر قانونی جگہ میں بنا ہوا تھا۔ وہ اگر ریگولائز ہو سکتا ہے تو یہ غریب کی بستی ریگولائز کیوں نہیں ہو سکتی؟ سپریم کورٹ آف پاکستان صاحب، آپ کے جو سپریم کورٹ کی پارکنگ کی جگہ ہے وہ بھی ناجائز جگہ پہ بنی ہے، تو سنائیے کہ آپ اس کو توڑنے کا حکم کب جاری کر رہے ہیں؟ آخر کب تک یہ غریب ہی کو آپ نشانہ بنائیں گے؟ یہاں پر وہ مزدور طبقہ بھی موجود ہے جو روزانہ کی بنیاد پر کما کر روزانہ کی بنیاد پر اپنے گھر کا چولہا جلاتا ہے۔ آخر جب 15 سالوں سے یہ آبادی بس رہی تھی تب آپ کی گورنمنٹ کہاں سو رہی تھی؟ جب 15 سالوں سے یہ گورنمنٹ یہاں عوام تعمیرات کر رہی تھی تب آپ کی سندھ پولیس کہاں سو رہی تھی؟ جب 15 سال پہلے یہ بستی آباد ہوئی، یہاں لوگ رہنے آئے، آپ کی گورنمنٹ کو نظر آیا گڑاب ٹاؤن تھانہ یہاں کے پیچھے ایریے میں پڑتا ہے، آپ کے پولیس والے بھی یہاں گشتوں پہ ہوتے ہیں، MDA والے بھی یہاں چکر لگاتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، MDA والے ہر پلاٹ کے عوض 20 ہزار روپے، 10 ہزار روپے یہاں چارجز کرتے تھے۔ آج وہی MDA والے، آج وہی پولیس والے یہاں آ رہے ہیں کہ غریبوں کو بے گھر ہم کرنے آ رہے ہیں، غریبوں کا گھر مسمار کرنے آ رہے ہیں۔ آخر آپ کو غریبوں کی آواز کیوں نہیں سنائی دیتی؟ آخر ہمیشہ غریب ہی کیوں پسے؟ ایک طرف آپ مہنگائی کے پہاڑ توڑتے ہیں اور دوسری طرف آپ غریبوں کو بے گھر کرتے ہیں۔ اگر آپ مہنگائی کے پہاڑ بھی اسی طرح توڑتے رہیں گے اور غریبوں کو بے گھر بھی کرتے رہیں گے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج سپریم کورٹ دنیا کے 126ویں نمبر پہ آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ صرف آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج ملک قرضے میں ڈوبا ہوا ہے۔ کیوں ڈوبا ہوا ہے؟ آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ڈوبا ہوا ہے۔ آج آپ اعلان کرتے ہیں 9 بجے کے بعد کاروبار بند کرو۔ کس طرح بند کرے؟ غریب عوام رات میں کمانے والے ہیں، ان کا کاروبار آپ نے چھین لیا اور اب آپ گھر بھی چھین رہے ہیں۔ آپ بتائیے، ایک بارش کا موسم اور اوپر سے بڑی عید، تو یہ بارش کا موسم بنا گھر کے یہ لوگ کہاں گزاریں گے؟ اپنے بچوں کو کس چھت کے نیچے لے کے جائیں گے؟ آج اگر کراچی میں کرایہ کا مکان لینے جاؤ تو 2 کمرے کا مکان کم سے کم 20 ہزار روپے کے عوض کرائے میں ملتا ہے۔ آپ بتائیے، آپ کی گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ایک مزدور کو تنخواہ 25 ہزار روپے دی جائے گی۔ اگر 25 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ دیتے ہیں تو 20 ہزار کرایہ دے کر وہ اپنا گھر کیسے چلائے گا؟ وہ اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں کیسے بھرے گا؟ اور وہ اپنے ڈاکٹر کی فیسیں کیسے ادا کرے گا؟ آخر غریب جائے تو جائے کہاں؟ پھر آپ ایک طرف کہتے ہیں کراچی میں اسنیچنگ بڑھ گئی، آپ کہتے ہیں کراچی میں واردات بڑھ گئی، آپ کہتے ہیں غریبوں نے فلاں جگہ دھرنا دے دیا، غریبوں نے فلاں کو تنگ کر دیا، غریبوں کی وجہ سے گورنمنٹ کا نقصان ہو گیا۔ اگر آپ غریبوں کو اسی طرح تنگ کرتے رہیں گے تو اللہ یقین مانیے یہ آواز عرش تک بھی جائے گی۔ آپ دنیا میں رسوا تو ہوں گے لیکن آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ حال ہی کا میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں، مدینہ مسجد طارق روڈ والا، جسے شہید کر سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہاں پارک بنانے کا حکم جاری کیا تھا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا مسجد اپنی جگہ قائم ہے آج تک، لیکن وہ جج جس نے یہ فیصلہ سنایا، وہ پولیس والے جو ہیوی مشینری لے کر مسجد کو شہید کرنے آئے تھے، وہ سرکاری ادارے جو اس مسجد کو شہید کرنے آئے تھے، وہ آج سب دیکھ رہے ہیں جج اپنے مستدمے میں فائز نہیں، اور لیکن مسجد اپنی جگہ قائم ہے۔ خدارا ان غریبوں کو مت ستائیے، خدارا ان غریبوں کو پریشان مت کیجیے، پہلے ہی اپنے بے روزگاری کا
खात्मा नहीं किया, ऊपर से महंगाई और ऊपर से बेघर करने जा रहे हैं। तो खुदारा इन गरीब आवाम की भी आवाज़ को सुनिए, इन गरीब आवाम को भी समझिए, ये हर बार गरीबों को परेशान मत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, आप यहाँ कितने साल से रिहाइश पजीर है? भाई यहाँ पे मैं तकरीबन 6-7 साल से हूँ। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आवाम की आवाज़ आगे पहुँचाई है। अर्ज़ ये है, ये जिस जज ने ये फ़ैसला दिया गोद गिराने का, पहले तो जब वो जज बने उसके एहसासे चेक करो कि कितनी एहसासे थे। उसके बाद उसको 10 साल हो गए हैं या 5 साल हो गए हैं, अब उसके एहसासे चेक करो। उसके एहसासे कहाँ से हैं? वो आवाम को ही लूट रहा है, हुकूमत से लालच, रिश्वत और बिक चुका है। मुझे ये बताओ, ये हुकूमत की जगह है तो हुकूमत क्या अपने बाप की जो है ना जगीर हमें दे रही है? ये हमारी जगीर है, हमारे टैक्स का पैसा है, आवाम ही टैक्स दे रही है। कौन सी हुकूमत, कुत्ती हुकूमत अपने बाप का पैसा लेके पाकिस्तान में आई है? सबसे पहले मुझे ये बताओ, सबसे कुत्ती बगैरत हुकूमत आज अमेरिका के ख़िलाफ़ क्यों नहीं बोल रही? पाकिस्तान मुसलमानों को क्यों तंग किया जा रहा है? हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को मारा जा रहा है तो हमारी हुकूमत क्यों नहीं बोल रही? लिहाजा मैं उस जज को भी जो बगैरत कमीना बिक चुका है और हुकूमत के हाथों बिक चुका है, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि तू अवाम का पैसा खा रहा है, अवाम का टैक्स खा रहा है और अवाम पे क्यों तू बोझ बना हुआ है और क्यों अवाम का जो है ना मकान तोड़ा जा रहा है? ऊपर से ईद आ रही है तो गरीब आवाम कहाँ जाएगी? के साथ बारिश का मौसम भी है। जज साहब, आप जो है ना अपने बच्चों की तरफ नज़र घुमाओ कि आपके बच्चे जब रोड पे बैठे हों और आप बेबस हों तो आप क्या करोगे? आप थोड़ा अपने बच्चों की तरफ देखो। हमारे गरीबों के भी बच्चे हैं, हमारी भी माँ हैं, हमारी भी बहन है, हमारी भी इज़्ज़त है। ये नहीं है कि तुम्हारी इज़्ज़त सोने की इज़्ज़त है और हमारी खाक की इज़्ज़त है। लिहाजा हम आवाम का ये फ़ैसला है कि जज साहब, आप थोड़ा अपने आप को संभालो और गरीब आवाम की जो है ना बर्बादी नहीं करो, नहीं तो इंशाअल्लाह आप भी बर्बाद हो जाओगे। जैसा कि आपने बताया आपको यहाँ 6 साल हो गए हैं माशाल्लाह, तो ये 6 साल की अरसे में कोई गवर्नमेंट की तरफ से, एमडीए की तरफ से, पुलिस महकमे की तरफ से कोई आपको ऐसा शख्स ताकीद करने आया हो कि आप यहाँ तामीर ना करें, कल को आपका नुकसान हो सकता है, आपका प्लॉट, आपको किसी ने यहाँ तामीर से रोका हो? सर बिल्कुल किसी ने नहीं रोका। ये मुझे 7 साल हो गए हैं इधर आए हुए, आज तक किसी ने नहीं रोका। जब मैं आया था उसके बाद बहुत मकान बने हैं, किसी ने भी आके ये नहीं बोला कि ये सरकारी है या ये घिरेगा। लिहाजा ये पहली मर्तबा, इतनी अरसे में ये पहली मर्तबा जो है ना इन्होंने बोला कि हाँ भाई ये सरकारी है। लेकिन मैं यही कहूँगा, ये सरकारी है तो हम अवाम का पैसा है, हमारा टैक्स है। सरकार अपने बाप की जज़ात लेके नहीं आई, सरकार जो है अपने बाप की क्या, हमारी जज़ातें जो है ना बहर मुल्क लेके गई हैं और हमने पैसे लेके ख़रीदी हैं ज़मीनें, पैसा दिया है। कोई ये नहीं है कि हम जो है ना आके इधर कब्ज़ा किया था, ठीक है। ये लिहाजा हमने, किसी ने नहीं बोला था कि ये अवाम ना बनाए इधर मकान, लिहाजा हमने मकान बनाए हैं। ये नहीं है कि हम जो है ना कोई जज हैं जहाँ हम जो है ना करप्शन कर रहे हैं, या हम किसी इदारे में हैं हम करप्शन कर रहे हैं। हम करप्शन करके नहीं बनाया, खुदा की कसम, एक रुपए जमा करके प्याज के साथ खाना खा के, रोटी खा के प्याज के साथ सालन नहीं बनाते थे हम, तो हमने मकान बनाया। आज इतनी बड़ा जुल्म क्यों? जज साहब, फिर मैं यही कहूँगा, आवाम के बच्चों के जो है ना कपड़े नहीं उतारो आप, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, ये नहीं जुल्म करो हमारे ऊपर। अपने बच्चों की तरफ देखो और हमारे बच्चों की तरफ देखो। एक तरफ ये लोग महंगाई के पहाड़ तोड़ती है गरीबों पर, और दूसरी तरफ ये लोग कहते हैं कि इनके घर में शुमार करो। जैसा कि देखिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हुआ 25,000 रुपये मज़दूर की तनख्वाह दी जाएगी। अल्लाह ना करे कि कोई गरीब बेघर हो, अगर ये लोग बेघर कर दें तो ज़रा आप मैसेज दे के आवाम
किस हाल में ये ज़िंदगी गुजारेगी। अभी जो पाकिस्तान के हालात है, जो महंगाई के पहाड़ तोड़े गए हैं गरीब आवाम पर, कि अब 1000 रुपये की दिहाड़ी लगा कर भी गुजारा ना हो घर में, वो हाल हमारा कर दिए। ज़रा इस चीज़ पर भी आप अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। सर आप कहते हो 1000 रुपये, हमें 500 रुपये भी मिल जाए ना, हम गरीबों के बच्चे खुश हो जाते हैं। हम आज प्याज के साथ भी रोटी खा लेना तो हम खुश बैठे होते हैं, ठीक है। और हमारे घर को ये नहीं है कि 20-20 डिशें बन रही है, और ना हमारे पास कोई करप्शन का माल है। मैं ख़ुद मज़दूर आदमी हूँ, मेरी दुकान थी लेकिन दुकान नहीं चली, उसके बाद दुकान वाले का 70,000 रुपये मेरे ऊपर किराया चढ़ गया है, तो मैंने हाथ भी बांधे हैं और दुकान भी छोड़ी है। उनसे यही अपील किया, आपकी मेहरबानी होगी, मैं आपको किश्तों के साथ जैसे होगा मैं आपको ये 70,000 दे दूँगा। अपने बच्चों का पेट काट कर यहाँ ऐसी बेवा औरतें, यकीन मानिए गुलशन अब्बास गोट में मेरा अपना प्लॉट था, मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने सुना कि मेरा प्लॉट टूट गया, लेकिन मैंने कुछ ऐसी बेवा औरतें यहाँ पे देखी जिन्होंने काम के घर पे मेहनत करके पैसे जमा करके अपना घर तामीर किया था कि मैं यहाँ रहूँगी। उनका छोटा सा एक बच्चा है, उन्होंने अपने बच्चे की मुस्तकबिल के लिए वहाँ पे सपने देख रखे थे, मज़दूर से किस्तों पर घर बनवाया, और जब गवर्नमेंट उसको मिसमार करके चली गई, सोचिए उस बेवा औरत पर क्या गुजरी होगी। लाजिम है वो बेवा औरत की दिल से बद्दुआएं निकलेंगी। आपने तो सुना होगा साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हाल क्या हुआ, आखिर वो अपने मनसब से बरी होने के बाद अमेरिका चला गया। आखिर ऐसा ही क्यों होता है पाकिस्तान में? गवर्नमेंट जॉब के जो बड़े बड़े अफसरान होते हैं वो रिटायरमेंट लेकर अमेरिका ही क्यों जाते हैं? सारी ज़िंदगी पाकिस्तान का माल खाते हैं, पाकिस्तान में कमाते हैं, लेकिन बच्चे उनके बाहर पढ़ते हैं। लेकिन एक गरीब तबका ही यहाँ पर ऐसा है जो कराची में अपने बच्चों को स्कूल भी कराची में पढ़ाता है, पढ़ाई से लेकर रिहाइश तक, खाना पीना सब कराची के अंदर। पाकिस्तान से बाहर जाना तो दूर की बात, कराची से बाहर जाने के लिए भी उसको सोचना पड़ता है कि मैं इतना किराया भाड़ा लगाकर कराची से बाहर जाऊंगा, उससे मेरा एक हफ्ते का घर चला जाएगा। अपना पेट काट कर अब 2 रोटी की बजाय आधी रोटी खाकर अपना घर बनाता है, और उसी घर को जब गवर्नमेंट मिसमार करने का हुक्म देती है तो सोचिए उस गरीब बाप पर, सोचिए उस गरीब माँ पर क्या गुजरेगी जिसने अपने बच्चे की ख्वाहिशात को मारकर, जिसने अपनी ख्वाहिशात को मारकर अपना घर तामीर किया था, रात दिन मेहनत करके अपना घर तामीर किया था। जब आएंगे आपके लिए क्रेन चलाना कोई मुश्किल नहीं, आप उसको ऑर्डर जारी करेंगे वो क्रेन चला के चला जाएगा। लेकिन एक गरीब से पूछिए जब उसका घर आप मिसमार करके जाएंगे उसके दिल में क्या बीतेगी। जाहिर सी बात है अभी बारिश का मौसम चल रहा है, जून जुलाई की गर्मियां है, ये जून जुलाई की गर्मियों में बारिश के मौसम में गरीब कहाँ ख़वार होगा, कहाँ अपने लिए आशियाना ढूंढेगा, कहाँ वो दर बदर घूमेगा। अगर यहाँ से जाएगा नौकरी का मसला, नई जगह नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, नौकरी के लिए परेशानी, तो जाहिर सी बात है वो गरीब एक घर टूटने पर अपनी ज़िंदगी के 20 साल पीछे चला जाएगा। उसको ज़िंदगी की एक नई शुरुआत वो भी तकलीफ़ के साथ करनी पड़ेगी। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आप ज़रा इन चीज़ों पर भी नज़र सानी करिए। आखिर कब तक गरीब आवाम ही निशाना बनती रहेगी? ज़रा आप उन गवर्नमेंट अफसरों के असासे भी देखिए जिनकी तनख्वाह सिर्फ 50,000 रुपये, लेकिन बाहर उनके कारोबार देखिए करोड़ों रुपए के। आखिर वो 50,000 वाला अफसर करोड़ों रुपए का कारोबार कहाँ से खोल के बैठ गया? आखिर वो 30,000 वाला पुलिस ऑफिसर इतने करोड़ों रुपए के कारोबार कैसे खोल के बैठ गया? उन पर आप नज़र क्यों नहीं डालते? उन पर आखिर आपकी नज़रें क्यों नहीं आती? आखिर गरीबों पर भी गरीबों पर ही आपकी नज़रें क्यों आती है? ये गरीब आवाम आपसे इल्तिमाना गुजारिश करती है कि ज़रा हम पर भी नज़र सानी कीजिए, हमारे घर टूटने से बचा लीजिए, हमारे इस केस पर नज़र सानी कीजिए।